से अटैक किया गया है, क्या करेंगे? हाईकोर्ट का ऑर्डर भी है, हाईकोर्ट का কোর্টের অর্ডার নিয়ে আজকে আপনারা মিছিলের গেলেন। কোর্ট পশ্চিমবাংলা এইরকম হিংসাত্মক ঘটনা পশ্চিমবাংলা কখনো দেখেনি। শুভেন্দু অধিকারী মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে তার যে প্রতিশোধমূলক আচরণ, সেই প্রতিশোধমূলক আচরণ আজকের এই যে মিছিল, তাতেও পর্যন্ত তার প্রতিশোধমূলক আচরণ দেখা গেল। আপনারা জানেন যে হাইকোর্ট থেকে অর্ডার নিয়ে আমরা আজকে আমাদের যুব এবং ছাত্র উইং তারা এই মিছিল করতে গিয়েছিল এবং এই মিছিল করার সময় আজ সকাল থেকে এই অঞ্চলে এই যে গলিটাতে আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন, এই গলিটার মধ্যে প্রায় 300 ছেলে উইদাউট হেলমেট, বিজেপির ছেলেরা 300টা ছেলে সকাল থেকে যেভাবে মোটরসাইকেল নিয়ে, বাইক নিয়ে এখানে মিছিল করেছে এবং মমতাদির উদ্দেশ্যে যে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল দিয়েছে, মানে আনবিলিভেবল। একজন মহিলার দিকে তাকিয়ে তাকে দিকে যে অশ্রাব্য ভাষা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে ইউজ করেছে, এ পশ্চিমবাংলায় কেউ কখনো শোনেনি। এবং এরা একদম ক্রিমিনাল, একবারে ক্রিমিনালদের মতো তারা কাজ করেছে। শুধু তাই নয়, তারপর সকাল থেকে উইদাউট পারমিশন একদম কালীঘাট থেকে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি পর্যন্ত মাইক লাগিয়ে ডিজে চালিয়েছে এবং ডিজেতে গালাগাল দেয়া হচ্ছে। ডিজের গানগুলো যেগুলো গালাগাল দেয়া গান চোর গান রয়েছে, সেই গান টানগুলো দেওয়া হয়েছে। এরপর তারা যখন মিছিল শুরু করতে যায়, তার আগে সিআরপিএফ পুরো আটকে রেখে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও তারা মিছিল করেছে, কিন্তু মিছিল করার সময় বিজেপির লোকেরা সেই মিছিলে এসে ভেতরে ঢুকে পুলিশের সামনে আমাদের ছেলে মেয়েদের মেরেছে, স্পেশালি মহিলাদের বেশর অত্যাচার করেছে। এমন কোনো জায়গা নেই মহিলাদের যেখানে আঘাত করেনি এই বিজেপির গুন্ডারা, এবং পুলিশ সেটাকে অ্যালাউ করেছে। পুলিশ থেকে নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে পুলিশ সেটা অ্যালাউ করেছে। এবং আজকে যে ডেমোক্রেটিক রাইট, সেই ডেমোক্রেটিক রাইটকে পুরো ডিমলিশ করে দিয়েছে, ফুল ডিমলিশ করে দিয়েছে একদম। এটা অসম্ভব, মানে আনথিঙ্কেবল, ভাবা যাচ্ছে না, এরা ভাবা যাচ্ছে না। কোর্টের নির্দেশ তো মানলই না, ছেড়ে দিন। কোর্টের নির্দেশে কি ছিল? মিছিলটা করার, সেই মিছিলটা তো ভালোভাবে যাতে হয়, ল অ্যান্ড অর্ডার দেখার ডিউটি তো পুলিশের। সেই ল অ্যান্ড অর্ডার দেখলোই না তো পুলিশ। একটা মিছিল হচ্ছে, পারমিশন নিল, কোর্ট পারমিশন দিল, পুলিশ। আপনি আমাকে বলতে দিন, নাহলে আমি চলে যাচ্ছি, ছেড়ে দিন। हाई कोर्ट का ऑर्डर वायोलेट करके हमारा जो ओपोनेंट है, ये भाजपा वाला, जिस तरह हमारा जो अनाउंस्ड और परमिटेड रैली था, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर लीडर्स हाउस, दिस पर्टिकुलर हॉरिस चैटर्जी स्ट्रीट, फ्रॉम बालीगंज फाड़ी टू कालीघाट, जिस तरह प्लान्ड हमला किया, ये कोई डेमोक्रेसी हो नहीं सकता। एक यूथ और स्टूडेंट विंग हमारा एक प्रेयर था कोर्ट के सामने इन सपोर्ट ऑफ हमारा 21 जुलाई का रैली एंड बारुईपुर इंसिडेंट, उसका प्रोटेस्ट एंड अदर इश्यूज। ये मिছিল होने वाला है, तो हाई कोर्ट परमिशन दिया था, उसके बाद कैसे हो सकते हैं? আমাদের ছাত্র যুবর যে মিছিল, মহামান্য হাইকোর্টের কাছে আবেদন, হাইকোর্ট তো অনুমতি দিয়েছিলেন, হাইকোর্ট তো অনুমতি দিয়েছিলেন। তাহলে কি করে সকাল থেকে আমাদের বলা হলো আপনারা মাইক লাগাতে পারবেন না, আপনারা বড়জোর হ্যান্ড মাইক ব্যবহার করতে পারেন। আর আমরা কি দেখলাম? আমরা মাইক লাগাতে পারবো না, আর আমাদের রুটটাতে
বিজেপির লোকেরা আমাদের বিরোধী গানগুলো মাইকে চালালো, পুলিশ ব্যবস্থা নিল না, পুলিশ ব্যবস্থা নিল না। আমাদের মাইক বাজানো বারণ, কিন্তু মাইক বাজালো বিজেপি। মিছিল আমাদের, গান আমাদের বিরুদ্ধে। ওরা কি ভাবছেন এসব তামাশা করে আটকানো যাবে? এরপর কি হলো, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি টার্গেট করে বাইক মিছিল, হেলমেট ছাড়া, অশ্রাব্য গালাগালি, নানা ধরনের কুৎসিত ইঙ্গিত। তারপর দেখা গেল বালিগঞ্জ ফাঁড়িতে জমায়েত, গোটা রুটটায় জমায়েত, এবং কিছু ক্ষেত্রে এমন কিছু জমায়েত যেগুলো রাজনীতিতে আমরা খুব একটা আগে দেখিনি। তৃণমূল মিছিল করছে, ছাত্র যুবরা, মিছিলের মধ্যে লোক ঢুকিয়ে যেভাবে মারা হলো, এখনো পর্যন্ত প্রায় 56 থেকে 57 জন মোট আহত। এসএসকেএমে যে পাঠানো হয়েছে সেই সংখ্যাটাও 41 ক্রস করে গেছে প্রাথমিক চিকিৎসার পর। এখন শোনা যাচ্ছে ওখানে নাকি ফতোয়া দেওয়া হয়েছে কাউকে রাখা যাবে না, সব সুস্থ, চিকিৎসা হয়ে গেছে, এইসব বলে বার করে দিতে হবে। কি করে হতে পারে এটা? মহিলাদের ঘিরে যে অশ্রাব্য তাণ্ডব হয়েছে, ছেলেদের মারা হয়েছে, একটা হাইকোর্টের অনুমতি পাওয়া মিছিল কলকাতা শহরের বুকে 1993 সালের 21শে জুলাইয়ের কথা মনে পড়িয়ে দিল 2026 সালের আজকের দিনটা। সেদিনকে পুলিশ বেসিক্যালি নিজে মারতে নেমেছিল, আর আজকে পুলিশ নিজেরা দাঁড়িয়ে থেকে বিজেপির ক্রিমিনালদের দিয়ে মারটা করালো। আমাদের ছেলেরা নিরস্ত্র গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মিছিল করতে গেছিল, সেই মিছিলে মাঝখান দিয়ে ঢুকে দফায় দফায় পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছে, বেধড়ক মারা হয়েছে, রাস্তার ধারে নিয়ে গিয়ে মারা হয়েছে, ডিম মারা হয়েছে, শারীরিকভাবে যথেষ্ট বড়সড় আঘাত করা হয়েছে, হেলমেট দিয়ে মাথায় মারা হয়েছে, কয়েকটি মেয়ে এবং ছেলে তো গুরুতর রকম জখম। ফলে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এইভাবে তৃণমূল কংগ্রেসকে, কারা তৃণমূল কংগ্রেসকে ভয় পায়, কারা আসল তৃণমূল প্রমাণিত, রাজপথে প্রমাণিত, ভয় থেকে প্রমাণিত কারা আসল তৃণমূল। আপনাদের দু একটি চ্যানেল একটু আগে এখানে দেখিয়েছে যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের কোনো কর্মীকে ধাক্কা দিয়েছেন বা চড় মেরেছেন। আপনাদের জেনে রাখা উচিত তিনি মানবিক অভিভাবকের ভূমিকা পালন করছিলেন। সামনে ভিড় হয়ে গেছিল, আপনাদের ভিড় ছিল, মিডিয়ার ভিড় ছিল, কর্মীদের ভিড় ছিল, আর ভেতরে একের পর এক গুরুতর জখম ইনজিওর্ড কর্মীরা পড়েছিলেন। গাড়ি এনে তাদেরকে তুলে হাসপাতালে পাঠাবার চেষ্টা। সেই জন্য সামনে থেকে দাঁড়িয়ে যদি কোনো মা যদি তার কোনো সন্তানকেও ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে থাকে আর এক সন্তানের চিকিৎসার জন্য, সেইটা আপনাদের খবরের খোরাক হতে পারে কখনো? আর কত নিচে নামবেন, আর কত নিচে নামবেন? তিনি চাইছিলেন গাড়ি রাস্তাটা ফাঁকা করে গাড়িটা আসতে দিতে, ভেতরে এখানে কাতরাচ্ছে তাদের তুলে দেবেন। তিনি যদি আর একজনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে থাকেন, বেশ করেছেন, সরিয়েছেন। এবার আজকের গণতন্ত্রের একটা কলঙ্কিত কলকাতার বুকে, কলকাতার রাজপথে, এবং এটা একটা নতুন ট্রেন্ড, এটা একটা নতুন ট্রেন্ড। আদালতের অনুমতি পাওয়া প্রোগ্রাম রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে গুন্ডামি করে ভেস্তে দেয়া হচ্ছে। এটা কিন্তু নজিরবিহীন। আমরা আদালত অবমাননার অভিযোগ এনে যাওয়া যায় কিনা আদালতে, নেত্রী সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে আমাদের বিশিষ্ট আইনজীবী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় গোটা বিষয়টা খতিয়ে দেখছেন।
ওরা 21শে জুলাই সমাবেশকে ভয় পাচ্ছে, ওরা তৃণমূল কংগ্রেসকে ভয় পাচ্ছে, ওদের রাজ্য সরকারের বকলেস পরানো তথাকথিত বিরোধী দল সেটা ওদের কাছে আলোচ্য বিষয় নয়। ওইসব চাটন রীত বা বেঈমান গদ্দার কয়েকটা, ওগুলোকে নিয়ে ওরা চিন্তিত নয়। যাকে নিয়ে চিন্তিত তার নাম মমতা ব্যানার্জি, যাকে নিয়ে চিন্তিত সেটা হচ্ছে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। সেই কারণেই আক্রমণটা কিন্তু আসছে মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল কংগ্রেসের উপরে, যেটা অরিজিনাল তৃণমূল কংগ্রেস, মা মাটি মানুষ। ফলে দয়া করে আজ যে কোর্টের অনুমতি সত্ত্বেও, কোর্টের অনুমতিকে চুরমার করে দিয়ে হামলা হলো প্রকাশ্যে, রাজ্য সরকার পুলিশ প্রশাসন দাঁড়িয়ে থেকে গুন্ডামিটা করালো, সেটা আপনারা সকলে দেখতে পেয়েছেন। আমরা এখন উদ্বিগ্ন, আমাদের যারা জখম হয়ে আছে তাদের যথাযথ চিকিৎসার জন্য সেগুলো আমরা নজর রাখছি। থ্যাংক ইউ। আমরা আজকে এইসব নিয়ে কোনো কথা বলবো না, কারণ ये जो चाटन रीतो है, जो गद्दार लोग है, आज हमारा प्रायोरिटी नहीं है, वो बंगाल में भी प्रायोरिटी नहीं है। वो सिर्फ भाजपा वालों उसको यूज कर रहे हैं तृणमूल को डैमेज करने के लिए, क्योंकि वो असली तृणमूल ममता दीदी को डरते हैं। हमारा आज फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारा जो इंजर्ड कॉलीग्स है उसका ट्रीटमेंट हमारा प्रायोरिटी है। हमारा लोग हमारे छेले मेয়েরা मार खाচ্ছে, আর ওই চাটন রিতোরা বেঈমান গদ্দার তারা বিজেপির হাতে গলায় বকলেস পরে বিজেপির দয়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা আর বাংলার মানুষ বিচার করবেন। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। मैं तो पूरा बोला, ये देखिए आज ये यूथ और स्टूडेंट्स का रैली था, यूथ विंग और स्टूडेंट्स विंग का रैली था, कोर्ट परमिशन दे दिया था, तो उसका ऊपर हमला हो गया है। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है। ममता दीदी देख रहे हैं, कल्याण बनर्जी जी हमारा सीनियर एमपी और लॉयर वो देख रहे हैं, प्रॉपर टाइम में आपको पता चला जाएगा। ये तो पहली बार हुआ, हम तो कंपेयर कर रहे हैं 1993 21 जुलाई के साथ आज का दिन का 26 में। अब देखिए वहां पर क्या हुआ था, वो सीपीएम का पुलिस खुद मर रहे थे, खुद, और यहां पे भाजपा का पुलिस खुद खड़ा होकर भाजपा को क्रिमिनल यूज करके ये मारपीट कराया, अटैक कराया। हमारा पीसफुल रैली था, उनका ऊपर क्यों वहां पर आएगा? আমাদের মিছিল কোর্টের অনুমতিতে, সেখানে এলো কি করে, সেখানে এলো কি করে? हमारा जो मिছিল हो रहे थे कोर्ट के परमिशन लेकर, वहां पर भाजपा को गुंडा लोग आएगा क्यों? पुलिस अलाउ करेगा क्यों? क्यों करेगा अलाउ? क्यों आएगा वो? ये तो सरासर कोर्ट का अवमानना है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। ये तो कोर्ट को देखना पड़ेगा। আমাদের ছেলেরা নিরস্ত্র ছিল, মুখে শুধু ছিল জয় বাংলা স্লোগান, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, জাস্টিস ফর বারুইপুর, 21শে জুলাই ধর্মতলা চলো, তার জন্য তাদের মারা হবে। কেন রাস্তায় দফায় দফায় বিজেপি থাকবে? দেখুন ভিডিওগুলো, কেন কোর্ট দেখবে না? আমরা তো চাইবো, আমরা 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 रैली के बीच बीच में अंदर घुस के मारा, अंदर घुस के बाधा दिया, अंदर घुस के मारा। पुलिस और सेंट्रल फोर्स रैफ देख रहे थे। ये सरासर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। जिस ऑनरेबल कोर्ट ये परमिशन दिया था, अभी उसको भी तो देखना पड़ेगा।
जो आप परमिशन दे रहे हैं और ये लोग आपका परमिशन को पूरा उल्टा कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो हो नहीं सकता। चलो, थैंक यू। ना ना ना, एकदम ना। बीजेपी वाले लोग जो थे बीच में रैली के अंदर ही में थे, स्लोगनिंग कर रहे थे, क्या बोलेंगे? ममता बनर्जी भी शामिल नहीं? निंदा करने का कोई भाषा नहीं है, ये लुच्चा लफंगा के काम है। हम इसको निंदा करते हैं, हम इसको प्रतिरोध भी करेंगे। वो हथियार छीनने की कोशिश कर रहा था जब सीन रिक्रिएट किया जा रहा था, क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? आपको मालूम है प्रभास मंडल कौन है? वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। उसके पास बहुत सारे इनके बारे में मालूम है और यूपी की तरह कार्यक्रम यहाँ भी चालू हो गया। जिन लोगों को इनकी अंदर की बातें हैं, बीजेपी की अंदर की बातें मालूम है, इन्होंने क्या क्या तैयारी की हुई है, उस सब के बारे में ये लोग उगल न दें, इसलिए इनको दिखाया जा रहा है कि एनकाउंटर हो गया। तुम्हारे कस्टडी में है, कैसे एनकाउंटर हो गया? तुमने तो उसको पकड़ के रखा होगा ना। तो ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है। एक राजा है, उसके घर में पुलिस बिस्तर पर बैठी हुई है, वह भी अभियुक्त है इसमें, इस कांड के अंदर। तो सब तरीके से, जिस तरीके से यूपी में सब कुछ छुपाया जा रहा है, उसी प्रकार से इन लोगों को छुपाया जा रहा है या फिर मार दिया जा रहा है, जिससे कि बीजेपी की बातें बाहर ना निकलें। पता कर लीजिएगा प्रभास मंडल कौन है, अपने आप पता लग जाएगा कि वहाँ का बहुत बड़ा बीजेपी का एक यह कार्यकर्ता है, सक्रिय सदस्य है। सर, बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है पश्चिम बंगाल के शामिल भट्टाचार्य, उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी या कुछ भी लॉलेसनेस बर्दाश्त, जिस तरीके की परिस्थितियाँ हो रही हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये अकबर और हुमायूं बाबर का सरकार नहीं है, यहाँ बीजेपी की सरकार है। हाँ, मुखबिरों की सरकार है। अंग्रेज़ों को जिसने समर्थन किया था उसकी सरकार है पश्चिम बंगाल में, पूरे देश भर के अंदर। अगर लॉलेसनेस नहीं किया जाएगा तो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता जो महुआ मोइत्रा के ऊपर अंडे मार रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, उनको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? जो सारे गद्दार हैं उनके साथ तो आपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और स्टेट फोर्स और सब कुछ दे के रखा हुआ है, लेकिन जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, जो विपक्ष के हैं, जो तृणमूल के हैं, उनके आप कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रहे हैं। और जितने भी इसमें चोर चौहाड़ हैं वो सारे दूसरी जगह जाकर मिल जा रहे हैं, उनको आप सबको संरक्षण दे रहे हैं। ये मुंह और मसूर की दाल, जरा सोच लें बीजेपी के अध्यक्ष कि किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। सब कुछ अंडा उन्हीं पे फूट रहा है। लेकिन सर, जो घटना हुई है बारुईपुर में बहुत ही दुखद है, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे विषय? यह एक दर्दनाक, गंदी, दरिंदगी वाली भरपूर यह घटना है। ऐसी दर्जनों घटनाएं पश्चिम बंगाल में सरकार जब से बीजेपी की आई है तब से ऐसे बलात्कार हो रहे हैं। मेरे क्षेत्र में कल एक हुआ, पूर्व बर्धमान में। 3 दिन पहले आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ हुआ। पश्चिम बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल के क्षेत्र में ऐसी दर्जनों 9 मई से लेकर 30 मई तक हुई है, जो अखबारों में निकली है। लेकिन खेद की बात यह है कि आरजी कार के ऊपर तो इतना बड़ा सब जगह पूरे देश भर के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश खड़ा किया गया, जो कि कलकत्ता पुलिस ने 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे दी थी, जो 62 दिन तक सीबीआई आई रही वहां पर और उसने भी वही रिपोर्ट दिया। तो यह केवल एक शुरू में ममता बनर्जी की सरकार को बदनाम करने के लिए किया गया था। यह ऐसी दर्दनाक, गंदी, दरिंदगी वाली घटना है जिसको रोकने में बीजेपी कामयाब नहीं हो पा रही है, और यह लगभग रोज के स्तर पर रोज ऐसे बलात्कार हो रहे हैं। सर, बीजेपी का साफ तौर पर कहना है, शुभेंदु अधिकारी भी वहां पहुंचे थे, क्विक एक्शन इस पूरे मामले पर। शुभेंदु अधिकारी तो आज तक नहीं गए बराईपुर, एक बार नहीं गए। 4 दिन के बाद उनका वक्तव्य आया, जब सोशल मीडिया पर सब चलने लगा, उसके बाद ही उनका वक्तव्य 4 दिन के बाद आया। ये लोग भी मिलने जो गए हैं वो 4 दिन के बाद गए हैं।
ममता बंदोपाध्याय को घर में घेर लिया गया, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, पुलिस, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, स्टेट पुलिस सब कुछ लगी हुई थी। ऐसे क्यों डरते हो? उनको मालूम है कि ममता बनर्जी आज भी लोकप्रिय है। जो हराया गया 91 लाख वोटों को काट करके 91 लाख वोट्स को SIR में डिलीशन कर दिया गया और अंतर केवल 30 लाख वोटों का था। 2 करोड़ 60 लाख TMC को मिले और 2 करोड़ 90 लाख BJP को मिले थे, जबकि 91 लाख वोटों को काट दिया गया था। आपके यहाँ से शाइनी तो गई हुई थी सर, शाइनी जो है अभी शाइनी अलग के ऊपर पार्टी भी से जी। शाइनी के ऊपर भी वही बातें हुई, काकोली दास्तीदार पर वही हुई, वही ऋतुव्रतों पर हुआ। सबको बोला गया बेईमान, सबको बोला गया गद्दार। तो इनका जो हश्र हो रहा है वो तो देख रहे हैं सब कुछ। सर हाई कोर्ट से अलाउ कर दिया गया है ममता जी को 8 तारीख को जो एक रैली करनी है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, यह तो अधिकार है, फंडामेंटल राइट है हमारा, आप रोक नहीं सकते। तो हमने कोर्ट से जा करके ये परमिशन ली है। 21 तारीख का हमारा बहुत बड़ा परमिशन हमने मांगा है। शहीदी दिवस है जो हर वर्ष मनाया जाता है, उसके लिए परमिशन मांगा हुआ है, अभी तक मिला नहीं। सर राम मंदिर की अगर बात करें तो चंपत राय जी का पहली बार उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है, एक पत्र लिखा है, ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि SIT की जब कंप्लीट रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद मैं उसका जवाब दूंगा, जिस तरीके से मेरे ऊपर आरोप लगे हैं तमाम बातों का स्पष्टीकरण। आप इसे कैसे देखते हैं? अरे गजनी की आत्मा को पता लगा कि राम मंदिर में बहुत पैसा है, तो गजनी आया, उसको पता लगा कि यह ट्रस्ट में लोग, चंपत राय जैसे लोगों ने लूट लिया इसको। तो गजनवी की आत्मा जो थी वो आधे रास्ते से वापस चली गई कि क्या लूटेंगे, इन लोगों ने तो वैसे ही राम मंदिर लूट लिया है। जिस प्रकार से चंपत राय अनिल मिश्रा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो यह अब तो खेल मज़ा आएगा। एक दूसरे पर कीचड़ फेंक रहे हैं, तो सामने तो स्पष्ट रूप से आ ही गया है कि चोरी तो हुई है। और कृष्ण मोहन जी, जिनको कि कार्यवाहक जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है, 80 लाख रुपए जो पहले दिन पकड़े गए थे उनके घर ला करके रखे गए थे, उसके बाद ही उसको जमा कराया गया था उस पैसे को ट्रस्ट के खाते में। तो उसी दिन FIR क्यों नहीं हुई? और कृष्ण मोहन जी ने कैसे रख लिया अपने घर में? वो तो अच्छे खासे पढ़े लिखे भारतीय सेवा के व्यक्ति, रिटायर्ड व्यक्ति हैं, उन्होंने कैसे रख लिया? FIR इन लोगों पर तभी उसी दिन क्यों नहीं हुई जिस दिन चोरी पकड़ी गई थी? SIT केवल एक दिखावा है, लीपा पोती करना है, इसके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। ये सारे लोग बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, इनको कोई बचा नहीं सकता। जिस प्रकार से PM केयर्स के ऊपर आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, उसके अंदर क्या घोटाले हुए, उसी प्रकार से राम मंदिर के अंदर PM केयर्स की तरह राम मंदिर ट्रस्ट में भी आप कुछ नहीं पूछ सकते। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जब का उनका खुलासा हुआ तो पता लगा कि जिन लोगों को ये जेल डाल रहे थे उनसे पैसे ले रहे थे, फिर उसके बाद बरी कर दे रहे थे। आपको याद होगा ED ने ऐसे बहुत सारे केस किए थे। तो ये वही है खेल, पैसा लूटो तमाशा देखो। यह BJP, VHP, RSS का खेल है और कुछ नहीं है। सर लेकिन योगी आदित्यनाथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वक्फ के मामले में तो आपके मुंह पे फेविकॉल लगा रहता है। बाबरी स्ट्रक्चर जब हुआ, जब राम मंदिर की जगह पर, तब आप लोग सब शांत रहे, उस समय तो मुंह पे फेविकॉल लगा हुआ था। आस्था के नाम पर जिस तरीके की चीज़ें अब आप लोग कर रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी कहना चाहते हैं कि वक्फ पर हेरा फेरी हुई, इसलिए राम मंदिर पे हेरा फेरी हुई तो ठीक है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। बात ये बताओ चोरी हुई कि नहीं हुई? वक्फ बोर्ड पर तो कानून बन गया, उस कानून के अंतर्गत सब काम होने हैं। इसको भी ओपन करके कानून बना दो। इसके ऊपर भी कोर्ट मॉनिटर्ड सिटिंग जज की इंक्वायरी लगा दो। इस पर कानून क्यों नहीं बनाते? बना दो। वो नहीं बनाएंगे, लेकिन हर एक चीज में इनको कम्युनल एंगल देखना है, सांप्रदायिक एंगल देखना है, क्योंकि इनको और कुछ आता नहीं है। मैं ये सोचता हूं कि अगर बेरोजगारी का मुद्दा, ये शिक्षा पेपर लीक का मुद्दा, ये महंगाई का मुद्दा, ये काला धन बाहर से लाने का मुद्दा, ये 100 स्मार्ट सिटी बनने थे वो बंद हो गए, इन सब मुद्दों को यदि हटा दिया जाए, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इन सबों को हटा दिया जाए, तो फिर बीजेपी के पास मुद्दा क्या है? ये तो बोल नहीं पाएगी, क्योंकि न तो इसने कभी शिक्षा के बारे में बात किया, न तो महंगाई के बारे में बात की, न तो महिलाओं के अत्याचार के बारे में कुछ इसने बोला।
तो इनके पास ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, घुसपैठिया, कुछ इसके अलावा कुछ नहीं है। उसके आगे ये ब्लैंक हो जाते हैं। अब चोरी पड़ गई, यहाँ डकैती हो गई राम मंदिर में, तो ये सांप्रदायिक एंगल ले आए। अरे पहले ये बताओ कि लूटा किसने, उसका जवाब नहीं देंगे। ये किसी तरीके से बात को गोल मोल घुमा के सांप्रदायिक एंगल पर ले जाएंगे। जो लोग अभी तृणमूल कर्मी जो लोग इंजरी हुआ है, अब तो अंदर के क्या हालत है, अभी कितना आदमी इंजरी हुआ है, क्या देखे आप? 41 पेशेंट इधर आया था, सबका इलाज चल रहा है। किसी किसी का कॉन्वल्शन भी हुआ था, किसी ने सेंसलेस भी था, उसको एडमिशन होना चाहिए था। लेकिन हम लोगों को नहीं लगा कि गवर्नमेंट की तरफ से या पुलिस की तरफ से या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एडमिशन ये करने देंगे। वो सब फर्स्ट एड करा के, स्कैन और एक्सरे करा के छोड़ देंगे, यही लगता है। दीदी आपको तो मालूम है बालीपुर में जो घटा है कि पुलिस का हेलीकॉप्टर में मारा गया, फोकस नहीं है, क्या बोलेगा? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है चल रहा है। हमारे दीदी तो बहुत खराब एडमिनिस्ट्रेशन चलाते, यही है ना मीडिया की तरफ से आप लोगों की कैंपेन। तो हम तो कभी 15 साल में पुलिस कस्टडी में ऐसे हत्यारा नहीं देखे। हम देखना पड़ता है 2 महीने के अंदर। दुख की बात है, अनफॉर्चुनेट है, कॉन्डेमेबल है। लेकिन आज का रैली के लिए हम 3 वीक से पुलिस से मांग रहे हैं परमिशन, और 3 बार उन्होंने इनकार कर दिया। फाइनली काल ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से परमिशन आया। बालीगंज फाड़ी टू हाजरा मोड़ 2.5 से 4.5 हजार आदमी, उससे ज्यादा नहीं, और नो माइक। ये था ऑनरेबल हाई कोर्ट का वर्डिक्ट, वो हम मान के चले। बोला दीदी आप तो सुने पुलिस का कस्टडी में जो आज बालीपुर में जो फोकस कंट्रोल डेट हो गया पुलिस के गोली से इनकाउंटर, क्या बोलिएगा? हमारे दीदी तो बहुत एडमिनिस्ट्रेशन चला नहीं पाता। आपकी तरफ से, आप सबकी मीडिया की तरफ से यही कैंपेन हो रहा है ना। तो इतना अच्छा लॉ एंड ऑर्डर, इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन 15 साल में हमने नहीं देखा। जैसे 2 महीना के अंदर पुलिस कस्टडी में एक एक्यूज का, और वो विटनेस भी है, उसका देहांत हो गया, हत्यारा हो गया। पुलिस ने उनको गोली करके मरा दिया। ये कभी नहीं सुने हम। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, कॉन्डेमेबल है। और आज की रैली के बारे में 3 वीक से हम कोशिश कर रहे थे। 3 वीक से हम पुलिस को, जॉइंट सीपी को मांग रहे थे परमिशन, एक रैली का नहीं मिल रहा था। उसके बाद हमने कोर्ट को अपील किया एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट काल इजाजत दिया था कि 1000 आदमी बालीगंज फारी टू हाजरा, नो माइक एंड 2.5 से 4.5 बजे तक ये रैली चलेगा। तो हम वही मानकर चल रहे थे, ऑनरेबल हाई कोर्ट को मान के चल रहे थे। लेकिन अब सबको देखने मिला शायद ये राष्ट्र शक्ति क्या है, एट्रोसिटी क्या है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद भी पूरा रास्ता में हाजरा टू बालीगंज फाड़ी कम से कम 10 स्टेज बनाने दिया बीजेपी को। परमिशन हमारा था, स्टेज बनाने का मौका मिला बीजेपी को, और कम से कम 100 और 200 ये था माइक, और उसमें गाना बजा रहा था। हमारा माइक का परमिशन नहीं था, उसका परमिशन किसी लिए हमको पता नहीं। हम लोग सीपी को बोले हैं, हम कंप्लेन किए हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट होल्ड करते, हम एमपी हैं, हम सीपी साहब को भी सब भेजे हैं दोपहर को कि ये हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। कोर्ट की वर्डिक्ट पर ये करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। बहुत कंडेमेबल है, बहुत अनफॉर्चुनेट।